Hello students, now today we are going to end this chapter. So few features were left. We were doing MS Word 2010 lesson number 9. Okay, in this I have told earlier that we are going to learn three types of formatting: page formatting, paragraph formatting and character formatting. So we have already done a lot of work on character formatting and paragraph formatting. Today we are going to learn some new features, and we will also learn how we can do page formatting. Page formatting also we have learned, but still we are going to revise it. So see page number 179, in which we are going to learn some new features. As you can see on the screen, there are few you can see few wavy lines. Okay, like you can see red wavy line and green wavy line. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट मी copy this on the next page so that I can show you everything. Copy, and I am going to copy this on new file, and here you will see some mistakes. You have seen when you are typing, so sometimes we do mistakes by not intentionally. Okay, some because of typing mistakes and some because of lack of knowledge. Okay, so here you can see both are here. You can see two wavy lines are here, red and green. So today we are going to start how we can check the spellings and grammar. Okay, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो दो ही तरह की मिस्टेक्स होती हैं, या तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं बिकॉज ऑफ टाइपिंग. इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें नहीं आती इसलिए होती हैं, वो हो जाती हैं. ठीक है, तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ विल डिफ्रेंशिएट कि देयर इज spelling mistake or grammatical mistake? It's very easy. If you will find red wavy lines, as you can see in making I have not written G. ठीक है, तो there is a spelling mistake, so it identifies the spelling mistake by appearing red wavy lines. And when there is a grammatical mistake, it appears with green wavy lines. So green wavy lines for grammatical errors and red wavy lines for spelling mistakes. अब question is that how will you rectify these mistakes? We can rectify these mistakes with the help of spelling and grammar. So there are two options, either you use right click or either you click on spelling and grammar tool. तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखाने. देन फर्स्ट ऑप्शन है, सपोज इफ मेकिंग आई वांट टू मेक अ करेक्शन, तो आप इसको राइट क्लिक करो. ठीक है, यू कैन सी इट इज शोइंग यू द सजेशंस, मेकिंग, मेकिन, मेन, एकिन. कैसे ये शो करता है? बिकॉज इन MS वर्ड देयर इज अ डिक्शनरी. ठीक है, इसके अंदर एक डिक्शनरी इनबिल्ट है, उस डिक्शनरी की वजह से ही ये आपको मिस्टेक्स बताता है. ओके, सो अब आपको जो भी सजेशन ठीक लगता है, मेकिंग इज करेक्ट, तो वो सही हो गया. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन मेक चेंजेस. मैं इसको दोबारा अंडू कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक. अब सपोज मुझे ग्रामेटिकल एरर्स करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे और कर दिया, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं हम. जैसे देखिए यहाँ पे टू प्रॉब्लम्स आ रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है. ग्रामेटिकल एरर के लिए भी आप राइट क्लिक कर सकते हो. ये देखिए आपको टू प्रॉब्लम्स होगा या टू प्रॉब्लम होगा. तो इट इज गिवन यू सजेशन कि इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है फॉर ग्रामेटिकल एरर. तो इफ यू हैव नो आइडिया कि मैंने कौन सी ग्रामेटिकल एरर की है, तो यू कैन हैव अ वेरी बेस्ट सॉल्यूशन ऑन MS वर्ड टू फाइंड द एरर्स. सेकेंड वे इज, पहला तो राइट क्लिक है, दूसरा है यू कैन क्लिक ऑन रिव्यू टैब एंड हियर यू कैन क्लिक, एंड द शॉर्टकट की इज F7. आप F7 प्रेस करोगे तो यू विल सी स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल बार विल अपीयर. यू सी the mistakes will be highlighted with the red color. तो making पे क्लिक करोगे तो change, then it is showing you the mistake on organization. एक्चुअली ये अमेरिकन है MS वर्ड, तो ये लोग Z यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग. अगर आपके अकॉर्डिंग ये ठीक है, इट्स करेक्ट, यू नीड नॉट टू मेक चेंजेस, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो या ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो. ऐड टू डिक्शनरी से क्या होगा, इन फ्यूचर विल नॉट शो यू एनी एरर, और इग्नोर से ये फिर उसी टाइम के लिए सिर्फ इग्नोर करेगा. अब टू प्रॉब्लम्स में से आपको दो सजेशन दिए हैं कि टू प्रॉब्लम्स हो सकता है या टू प्रॉब्लम. अब ये ग्रीन इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज अ ग्रामेटिकल एरर, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है चेंज करना है तो इन दोनों में से आप कर लो. तो टू प्रॉब्लम सही है, चेंज. ठीक है, सी
तो जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक्स की थी वहाँ वहाँ वो रेक्टिफाई होगी. तो इन दिस वे यू कैन मेक द चेंजेस, यू कैन रेक्टिफाई द एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स. अब दूसरा है ऑप्शन ऑन पेज नंबर 180, thesaurus. thesaurus क्या होता है? इट इज एन इनबिल्ट डिक्शनरी. आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाई इट गिव्स एरर्स बिकॉज इट हैज अ इनबिल्ट डिक्शनरी which enables you to look, use synonyms, antonyms, substitutes and alternative spellings. ठीक है. Suppose your English is not very good, your vocabulary is not very good, so you can take the help of thesaurus. And this thesaurus you will get on review tab. Click here. Okay. अब आपको suppose इसमें 2 select है because 2 it is selected, that's why it is showing you the synonyms and antonyms about that. अब suppose I want to see the synonym of modification. So select that word. Okay. आपने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन thesaurus. ये देखिए मॉडिफिकेशंस के लिए आपको जिस भी वर्ड का आप सिनोनिम या एंटोनिम या ऑल्टरनेट देखना चाहते हो, select that word, click on thesaurus. It is showing the see alteration, change, adjustment, amendment. तो it is showing you so many words. बहुत सारे वर्ड्स हैं. जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो यू कैन यूज इट. सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे वेरिएशन, अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट, ऑल्ट्रेशन, ठीक है. सपोज यू वांट टू मेक चेंज अ वर्ड विद ऑल्ट्रेशन. इसका सेम मीनिंग है मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन का. इफ इट इज सुटेबल क्लिक ऑन ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का होता है मीनिंग चेंज. अब आप इसको मॉडिफिकेशन की जगह एडजस्टमेंट या जो भी वर्ड आपको लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए उस पर क्लिक करो, इंसर्ट करो. ये देखिए हो गया. सो इन दिस वे यू कैन replace the word with its alternative. तो thesaurus help us to improve our vocabulary. vocabulary क्या होता है कि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज हो कि किस वर्ड की जगह हम कौन सा मीनिंग, कौन सा ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. वैसे तो यहाँ एडजस्टमेंट वर्ड सुटेबल नहीं है, बट आई हैव जस्ट शोन यू कि हाउ वी कैन मेक चेंजेस ऑफ thesaurus. So it's very easy. Just click on review tab, click on thesaurus and I can show you more. Once more techniques को आप select करो. Okay, click on thesaurus. It is showing you the related word. ठीक है. System, practice, modules, procedure, performance. So there are so many words. If you want to remove it with the procedure, click on it and click on insert. It will change with the alternate word. So in this way you have learned how we can how we can make the use of thesaurus, how we can improve your vocabulary with the help of thesaurus. So this is the second feature. Now next is symbols. How we can insert symbols? You know, on our keyboard we do not have all types of symbols. So that's why MS Word has provided you so many symbols. It can be mathematical symbols. So many symbols are there. So you can take the help of thesaurus. For this, first keep your cursor at that place where you want to insert. Suppose I want to insert symbol here, so just place your cursor there. Click on insert. Then click on symbol. See, this is the symbol. Insert में मिलेगा, click on symbol. So if you want to change simply click the symbol button. Okay, click on the symbol button. Now see more symbols. Okay, any symbol, कोई भी symbol. अब see यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं. यू कैन स्क्रॉल इट. ओके, एंड यू कैन हैव सो मैनी सिंबल्स. फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो. ओके, फॉन्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी सिंबल इंसर्ट करना है यू कैन. सपोज आई वांट टू इंसर्ट दिस सिंबल. ओके, यूरो साइन है, क्लिक ऑन इंसर्ट. सी, हो गया इंसर्ट. अब आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, नॉट इट्स अ फॉन्ट, तो आप इसको कलर भी इसका चेंज कर सकते हो. Okay, you can increase its size, you can decrease its size. So in this way you can apply any type of formatting here. See, so in this way you can insert a symbol. So it's very easy. Just place your cursor at that position, click on insert, click on symbol. If you want apply symbol from here, otherwise click on more symbols and click here and insert. So in this way we can insert any symbol on the page. Now next is page formatting. देखो पेज फॉर्मेटिंग में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं. That they also have told. Click on for this page layout tab.
ठीक है, मार्जिन्स होते हैं, आप या तो मार्जिन्स यहां से भी सेट कर सकते हो, क्लिक हियर, ये देखिए इधर से भी सेट कर सकते हो। जब आप इस पे इंडेंटेशन बटन पे देखो, 2 साइडेड एरो जब आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो इंडेंटेशन बटन है, लेकिन अगर आपको जब 2 साइड, जैसे यहाँ पे 2 साइडेड एरो शो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए अब आप जब लिखेंगे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो आपका यहाँ तक लिखेगा। तो इस तरह से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सेट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। आप कस्टम मार्जिन में जाओ, इट विल शो यू ऑल द 4 मार्जिन्स। टॉप से आपको जितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट से आपको जितना मार्जिन चाहिए, बॉटम मीन्स नीचे से, राइट मीन्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, ये देखिए अब जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये विल शो यू द मार्जिन। तो in this way you can set the margin either from here by dragging this 2-headed arrow, or you can also start from here. दूसरा होता है ओरिएंटेशन। अभी मेरा जो पेज का साइज है वो पोर्ट्रेट है। इफ आई वांट टू मेक इट लैंडस्केप तो क्लिक इन लैंडस्केप। ये देखिए लैंडस्केप में क्या होता है, विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, ठीक है। और जैसे डोर होते हैं, डोर किस में होते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्म में। और जो विंडोज़ होती हैं, वैसे तो आजकल विंडोज़ भी पोर्ट्रेट फॉर्म में होती हैं, बट फिर भी हम उसका जो इंटरनल होता है इंटीरियर, वो लैंडस्केप में होता है। तो लैंडस्केप, जैसे बोर्ड आपके होते हैं, बोर्ड लैंडस्केप होते हैं, ठीक है, उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। और पोर्ट्रेट में क्या होता है, हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। सो इन दिस वे यू कैन डू द पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन। साइज में क्या होता है, अगर आपको पेज का साइज चेक करना है, चेंज करना है, जैसे A3 है, ये देखिए, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द साइज। A4 लेटर साइज करना है, जो भी साइज आपको ठीक लगता है यू कैन डू, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, वैसे हम बाय डिफॉल्ट A4 भी रखते हैं या स्टेटमेंट पे रखते हैं, स्टेटमेंट पे नहीं रखेंगे, सॉरी, एग्जीक्यूटिव और A4, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको पेज का साइज कैसे चेंज करना है। तो इन दिस वे यू हैव लर्न पेज फॉर्मेटिंग ऑल्सो। तो इन पेज फॉर्मेटिंग यू हैव लर्न हाउ कैन यू क्लिक ऑन पेज लेआउट, मार्जिन्स आप सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो और साइज सेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे हेडर एंड फुटर लर्न। हेडर एंड फुटर्स क्या होते हैं, फर्स्ट लेट मी टेल यू। आपने देखा होगा आपकी बुक में या तो पेज के टॉप पे या तो पेज के एंड पे, बॉटम पे पेज नंबर या कोई टाइटल दिया होता है, ठीक है। इट एक्चुअली हेडर एंड फुटर आर व्हाट, हेडर एंड फुटर आर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। जैसे आपको पेज नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप हेडर पे देखते हो या फुटर पे देखते हो, या तो वो पेज के टॉप पे दिए होते हैं, और बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वो फुटर बॉटम के पेज पे दिए होते हैं। तो ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में। जैसे आपकी बुक में किप्स आप देखोगे, जो बुक का नाम है लर्निंग कंप्यूटर्स विद किप्स, वो हर बुक के बॉटम पे दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या है, फुटर है, बिकॉज इट इज गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज। और यही चीज़ अगर आप हेडर पे दोगे, टॉप पे दोगे, इट बिकम्स अ हेडर। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन अप्लाई हेडर एंड फुटर। अगर एक बार आपने हेडर फुटर अप्लाई कर दिया तो इट विल विजिबल इटसेल्फ ऑन ऑल द पेजेस, ठीक है। तो इसके लिए आप किस पे जाओगे, रिव्यू पे, सॉरी इंसर्ट पे, हेडर, ठीक है। हेडर पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, एनी स्टाइल यू कैन यूज, ठीक है। सपोज मैंने ये ले लिया। अब आपको यहाँ पे हेडर फ्रॉम टॉप, अगर आप इसका हाइट चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, देखिए ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको इस हेडर में टैब की को प्रेस करना है। टैब की में सपोज मैं चाहती हूँ ये कंप्यूटर लिखा हुआ है हर पेज पे, ठीक है। क्लोज हेडर एंड फुटर, ये देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, अपने आप नेक्स्ट पेज पे भी कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब सपोज मैंने एक नया पेज इंसर्ट किया, ब्लैंक पेज, ठीक है। इसके लिए मुझे एक और पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, एंटर की से भी आप ये देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। सो जब हम हेडर अप्लाई करते हैं, हेडर में आप पेज नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, एनी टॉपिक विच यू वांट ऑन ऑल द पेजेस, तो वो अपने आप विजिबल हो जाएगा। अब फुटर के लिए आप क्या करोगे,
आपको पेज के एंड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका कर्सर पेज के एंड पे आ जाएगा, फिर आप जाओगे इंसर्ट पे फुटर, ठीक है। फुटर में भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, ये ले लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, सपोज आप पेज नंबर लेना चाहते हो तो आप पेज नंबर भी ले सकते हो। बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। मुझे ये स्टाइल पसंद है, ये देखिए। अब क्या होगा, यू विल सी यहाँ पे 2 अपने आप आ रहा है, हर जगह अपने आप 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो जब भी आप नया पेज इंसर्ट करोगे ये सब कुछ अपने आप आता जाएगा, अपने आप हेडर एंड फुटर। जैसे अब मैंने नया पेज लिया सपोज, ये देखिए कंप्यूटर हेडर पे आ रहा है और फुटर पे आपका पेज नंबर 5। तो अब आप नया पेज एंटर करोगे, फिर पेज नंबर 6, अपने आप पेज नंबर कॉन्टिन्यूएशन में आते जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई हेडर एंड फुटर। और अगर इन केस आपको हेडर एंड फुटर लगता है अप्लाई हो गया, रिमूव करना है, यू कैन, आप फिर से इंसर्ट पे जाओ। अगर आपको हेडर रिमूव करना है, रिमूव हेडर पे क्लिक कर दो, चला गया, ठीक है। सो यू विल सी फुटर तो है बिकॉज आई हैव अप्लाई रिमूव द हेडर, तो हेडर सबसे रिमूव हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट कि वंस यू हैव अप्लाइड, अगर आपको एडिट करना है, जैसे अब आपको फुटर पे एडिट करना है तो आप एडिट फुटर पे चले जाओ, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। सपोज आपको पेज नंबर की जगह डेट एंड टाइम देना है तो आप डेट एंड टाइम दे सकते हो, ठीक है, क्लोज। अब ये देखिए हर पेज के फुटर पे क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ पेज नंबर इट विल शो यू डेट। और क्योंकि हेडर मैंने रिमूव किया था तो दैट्स वाई इट हैज़ रिमूव द हेडर। तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई हेडर एंड फुटर। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हाउ वी कैन ऐड बॉर्डर्स टू अ पैराग्राफ। इट्स वेरी इजी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज मेरा पैराग्राफ है, फर्स्ट आई विल सेलेक्ट दिस पैराग्राफ, क्लिक ऑन, ये देखिए होम टैब पे ही हैं हम, होम टैब पे ये पैराग्राफ ग्रुप में हम जाएंगे, ठीक है। हेयर यू विल क्लिक ऑन बॉर्डर, ठीक है, आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स में आप कोई भी एक बॉर्डर अप्लाई कर लो, सपोज आपको ये स्टाइल चाहिए, कलर इफ यू वांट टू अप्लाई, कलर अप्लाई कर लो, विड्थ अगर आपको छोटी, ठीक है। अब ये अगर आपको बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो बॉर्डर पे ही रहेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा आपके पैराग्राफ पे, ठीक है। ये तो हो गया पैराग्राफ पे। अगर आपको पेज पे अप्लाई करना है तो क्लिक हियर, क्लिक ऑन बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, क्लिक ऑन पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर के लिए आपको बॉक्स चाहिए, आपको जो भी स्टाइल सुटेबल लगता है वो ले सकते हो। कलर यू कैन चेंज, ठीक है। आप विड्थ को कम कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये बन गया पेज बॉर्डर। देखिए सब पे पेज बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई पेज बॉर्डर एंड पैराग्राफ बॉर्डर अप्लाई करना तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, इसी बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाओ, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे, तो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो पेज पैराग्राफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। पेज बॉर्डर पे अगर आप चेंजेस करोगे तो पेज पे अप्लाई हो जाएगा। शेडिंग हेल्प अस टू फिल द शेड ऑन द पेज। अगर आपको पेज पे शेड लगाना है, जैसे मैंने सपोज यहाँ से ले लिया ग्रीन कलर, ठीक है। स्टाइल आपकी मर्जी है, कलर व्हाटएवर कलर, चलो आपने पहले से ले लिया है, ओके, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे आपका कलर आ जाएगा। इट विल नॉट अप्लाई ऑन पेज, इट विल अप्लाई ऑन अ, आपकी मर्जी आप शेडिंग टैब किस पे कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने पेज पे ना करके मैंने पैराग्राफ पे कर दिया, इट्स योर चॉइस। सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक हियर अगेन, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, शेडिंग पे क्लियर किया, फिल पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। तो ये आपका जहाँ जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे ही आपके पेज पे अप्लाई होता जाएगा, ये देखिए। बट इट्स मैंडेटरी टू राइट समथिंग, ऐसे नहीं कलर आएगा, जब आप लिखोगे तो उस पर अपने आप ये शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन डू, ठीक है। अब तो इस तरह से यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। अब हम देख लेते हैं प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब हमें जैसे डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है, ऑफिस बटन पे, प्रिंट में और प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए आपको प्रीव्यू शो कर रहा है,
नेक्स्ट पेज, ये देखिए, ठीक है, प्रीवियस पेज, दिस, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। तो 4 पेज हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और जो आपको ये प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही ये प्रिंट भी करेगा। ये इसी तरह से इतने मार्जिन को लेफ्ट करके आपका प्रिंट होगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सी ऑल्सो द प्रीव्यू। आप प्रिंटिंग के पहले आप प्रीव्यू ऑप्शन पे जाके यू कैन सी कि आपका पेज कैसे प्रिंट होने वाला है। अगर आपके पेज में पेज से बाहर टेक्स्ट जा रहा होगा तो वो भी आपको शो करेगा, ठीक है। इसमें प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप प्रिंटर अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पेज की रेंज, जैसे सारे पेजेस क्लिक करने तो ऑल, सारे पेजेस, सपोज आई हैव 4 पेजेस, 4 के 4 मुझे प्रिंट करने तो आई विल क्लिक ऑन ऑल। करंट पेज, जो पेज आपका इस समय स्क्रीन पे है, सिर्फ वही होगा। करंट पेज का मतलब होता है कि जिस पेज पे आपका कर्सर है, ठीक है। जैसे सपोज मेरा कर्सर इस लास्ट वाले पेज पे है, ये देखिए, ठीक है। तो इट विल प्रिंट द लास्ट पेज। जो भी पेज आपको प्रिंट करना है तो वहां पे आप अपना कर, सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस पेज, तो फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट। तो ये करंट पेज हो गया आपका, ठीक है। करंट मीन्स वेयर एवर यू हैव अ कर्सर। फिर आपको सपोज पेज नंबर डालना है। अब जैसे 3 पेजेस हैं, ठीक है, तो आपको 1 और 3 ये 2 पेजेस प्रिंट करने, तो आप कॉमा लगा के कर दो, ठीक है। आप पेज नंबर लिख सकते हो। 4 पेजेस हैं तो आपको आइडिया है कि मुझे फर्स्ट नंबर का पेज और थर्ड नंबर का पेज प्रिंट करना है। अगर आपको सेकंड पेज करना है तो सेकंड पेज डाल दो, तो वो सेकंड पेज को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, अगर आपको एक पेज की बहुत सारी कॉपीज चाहिए, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। कोलेट में देखो क्या होता है, सपोज मैंने सारे पेजेस को प्रिंट किया है, ठीक है। कोलेट में क्या होगा, अगर मैंने कोलेट ऑप्शन को क्लिक नहीं किया तो ये थोड़ा सा, इट शुड बी क्लिक्ड। कोलेट में क्या होता है कि सपोज मैंने 4 पेजेस का सेट निकालना है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पेज का 3 कॉपी निकाल देगा, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपीज निकालेगा, देन फोर्थ पेज की 3 कॉपीज निकालेगा। तो बाद में क्या होगा, मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा एज इट इज शोइंग यू। देखिए, फर्स्ट पेज की पहली 2 कॉपी, फिर थर्ड की, फिर 3। कोलेट से क्या होगा, वो सेट की फॉर्म निकालेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज का एक सेट, ठीक है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज का दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, तो वो अरेंज्ड होगा। तो कोलेट ऑप्शन पे हमेशा आपको क्लिक करना चाहिए जब आप मल्टीपल पेजेस का प्रिंट आउट ले रहे हो। जैसे सेम पेजेस का प्रिंट आउट अगर आप लेते हो तो ये आपको शो कोलेट ऑप्शन पे ही हमेशा क्लिक करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जैसे क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो अब हमें क्वेश्चन पेपर्स के सपोज, वैसे तो वो फोटोकॉपी कराया जाता है, लेकिन अगर आपको उनके प्रिंट आउट्स मल्टीपल सेट्स निकालने हैं तो यू शुड क्लिक ऑन कोलेट ऑप्शन। ये ऑप्शन फोटोकॉपी मशीन में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोलेट ऑप्शन हेल्प यू टू गिव द प्रिंट आउट इन अ अरेंज्ड फॉर्म। तो आपको अरेंज नहीं करना पड़ता है, सेट नहीं बनाने पड़ते हैं। एज यू कैन सी कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज का प्रिंट निकालेगा, फिर नेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। तो यू नीड नॉट टू मेक सेट एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। सो नाउ टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीट, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।